الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ ہم روزانہ تراویح کے بعد ایک عنوان سے دعا کرتے ہیں اور ایک شکل بنا کے جس کو مجرمانہ حاضری کہتے ہیں، اور اس میں لفظ پڑھتے ہیں اللہم بسمک کہف کتمیر۔ یہ دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، مسنون دعا ہے، سوتے وقت یہ پڑھی جاتی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ اس کا پہلا حصہ ہے اللہم بسمک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹا نہ ملا، 40 سال فراق میں روتے روتے آخر کار آنکھیں بھی سفید ہو گئیں، نظر آنا بند ہو گیا، اللہ پاک جل شانہ نے ایک اسم عطا فرمایا۔ رب کی منشا، رب کی مشیت، رب کی رضا متوجہ ہوئی تو اللہ پاک نے ایک اسم عطا فرمایا۔ پھر جب وہ اسم پڑھا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی اور حضرت یوسف کو تخت، بخت، حکومت، اقتدار، عزت، وقار اور شان و شوکت ملی۔ وہ لفظ تھا یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف۔ اللہ کے اسماء حسنی ہیں، اللہ کے نام ہیں۔ حضرت اعلیٰ حضرمی صحابی ہیں، حضرمی قبیلہ اب بھی ہے۔ خالد بن محفوظ الحضرمی بینک الاہلی کا مالک ہے، سعودی عرب میں جتنے بینک الاہلی ان کا مالک ہے، بن محفوظ کہتے ہیں اصل میں، خالد بن محفوظ الحضرمی۔ مجھے ایک دفعہ ملاقات میری ہوئی تھی۔ حضرمی قبیلہ ہے، حضرت اعلیٰ حضرمی سمندر میں سفر کر رہے، لکڑی کا پیالہ سمندر میں گر گیا، کچھ نہیں کیا، ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور پڑھا یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم، بس اللہم بسمک، اللہ کے نام اسماء حسنی ان کا انتخاب کیا اور اللہ کے ناموں کے ذریعے سے مانگا یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم۔ پانی کی ایک لہر آئی اور پیالے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ مولا میرے پاس تو یہی کی پیالہ ہے اور تو یہ ایک پیالہ عطا فرما۔ یہ ہے اللہم بسمک، اللہ کے اسماء حسنی۔ ایک حضور فرماتے ہیں میں جنگل میں گم ہو گیا، میں سویا تو دیکھا تو میرا اونٹ نہیں تھا، اس پہ پانی بھی تھا، اس میں کھانا بھی تھا، اس میں سب کچھ تھا، اونٹ بھی گم ہو گیا، کہیں چرتے چرتے کہیں گم ہو گیا، بے سر و سامانی کی حالت میں پریشان، بیابان، ویران، جنگل، موت ہی موت۔ میں روتے روتے دعائیں کرتے کرتے اللہ سے سو گیا۔ ایک درویش آئے اور مجھے فرمانے لگے تو کہتا نہیں یا لطیفم بخلقہ، میرے ساتھ پڑھیں یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی
या लतीफो या अलीमो या खबीर। मैंने पढ़ा तो एकदम एक साहब आए, या शेख, मुझे उठाया। सवारी भी थी, नेमतें भी थी, जिंदगी भी थी, खाना भी था, पाना भी था। अल्लाह के 3 इस्म, या लतीफो या अलीमो या खबीरों के जरिए यह है अल्लाहुम्मा बिस्मिका, मौला तेरे नामों से मैं मदद मांगता हूं, तेरे नामों से एआनत। सईद बिन मुसैयब बहुत बड़े ताबई हैं, जलीलुल कदर ताबई, मस्जिद नबवी के खोंटे थे, मस्जिद नबवी को आबाद करने वाले थे। फरमाते थे मुझे जब भी कोई मुसीबत आई है, मैंने कहा है अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक्तादिरुन। अल्लाह के 2 नाम हैं, या मलीक या मुक्तादिर। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक्तादिरुन मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। मौला तू मालिक भी है, तेरा इख्तियार भी है, तू पल में चाहे हो जाए, तू कर दे, तेरे लिए कौन सी देर है। और कहा जब मैं ये दुआ पढ़ता हूं मेरा काम हो जाता है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका, ये अल्लाहुम्मा बिस्मिका है। अल्लाह के नामों की मदद, अल्लाह के नाम की सिफाती नाम, उनके जरिए मोहब्बत, इश्क, प्यार, मसाइल का हल, मुश्किलात का हल। और फिर हर नाम में एक तासीर है, हर नाम में एक ताकत है, हर नाम में एक कुव्वत है, हर नाम में एक तासीर है। जब बंदा सोने की दुआ पढ़ता है, गौर से समझिएगा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये जो अल्लाहुम्मा बिस्मिका है ना, ये असल में सोने की दुआ की चाबी है, ये सोने की दुआ का दिल है, ये सोने की दुआ का इस्म आजम है। अल्लाह पाक अपने सारे सिफाती नाम जो तौरात में है, जो इंजील में है, जो ज़बूर में है, जो कुरान में है, जो सहीफों में है, जो लौह महफूज में है, जो लौह महफूज में नहीं मेरे रब के इल्म में है, वो सारे सिफाती नामों की तासीर वो हिफाजत की शक्ल में, वो किफायत की शक्ल में, वो किफालत की शक्ल में, उसकी रहमत की शक्ल में, उसकी छतरी की शक्ल में, उसकी आनत, उसकी मोहब्बत और मुरब्बत, मवद्दत, मरजइयत की शक्ल में, वो सारे के सारे सिफाती नाम अपनी छांव के साथ इस बंदे के ऊपर आ जाते हैं और बंदा बेसुध सो रहा, कोई खबर नहीं। हिफाजत का निजाम अनोखा इसके साथ है। एक साहब कहने लगे मैंने देखा एक बंदा सो रहा, सांप आया, मैं भी सो रहा था, सांप भागा और इस बंदे के ऊपर से यूं गुजरा, जहरीला सांप था, ये सो रहा है, इसे पता नहीं है। हिफाजत का निजाम अल्लाहुम्मा बिस्मिका। एक और सुने, कहने लगे बारात थी और बारात रात को पहुंची, रात को सुबह रुखसती थी बारात की, चारपाइयां थोड़ी थी, दूल्हा सो रहा था एक चारपाई पे, हम 2 एक चारपाई पे सो रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात ढल गई, दूल्हा थका हारा ऐसे हाथ किया, एक हाथ चारपाई के बाहर था। मैंने देखा है कि एक बड़ा सारा बिच्छू आया, वो उछल उछल के दूल्हा के हाथ को काटना चाह रहा। उसकी उछलन, उसकी छलांग, दूल्हा का बाजू जो चारपाई से बाहर लटका हुआ था उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। कहा कि मेरी आंखें ऐसे देख रही थी, कोई ताकत थी जिसने मुझे पकड़ा हुआ था, आंखें भी बेदार थी, शऊर भी बेदार था, मैं कुछ कर नहीं सक रहा था। फिर बिच्छू कोशिश करते करते चला गया। थोड़ी देर हुई, एक सूखा गोबर बिच्छू उसको घसीटता हुआ ले आया, सूखा गोबर घसीटता हुआ ले आया। उस सूखे गोबर पे चढ़कर फिर छलांग लगाई और उसको डसा, फिर डसा, उसकी नींद में फिर डसा। कहा कि इस दौरान मैं ये मंजर देखता रहा, मुझे एहसास हुआ कि ये मंजर है, तो मुझे नींद आ गई। सुबह शोर हुआ दूल्हा मरा हुआ है। कैसे मरा, किस तरह मरा? कहा मैंने सारा वाकया सुनाया।
कहा तू नहीं उठ सकता था, कहा ताकत थी और वो तकदीर थी जिसने मुझे बांधा हुआ था, मैं उठ नहीं सक रहा था। अल्लाहुम्मा बिस्मिका की हिफाजत होती है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका का कड़ा है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका ये हमारी रगों, रेशों, राहतों और हमारी नींद के दर गफलत, क्योंकि अन्नौ निस्फुल मौत, नींद आधी मौत है। इस आधी मौत के दरमियान एक हिफाजत का अनोखा निजाम है जो कि शुरू होता है अल्लाहुम्मा बिस्मिका के साथ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका। सारी अहदीस में अस्माए हुस्ना बताए गए हैं, सारे कुरान में अल्लाह के नाम हैं, अल्लाह के नाम हैं। या वदूद ज़ल अर्शिल मजीद, या फ़आलुल लिमा युरीद, ये अल्लाह का नाम वदूद आ रहा है, ये अल्लाह का नाम वदूद आ रहा है। और सूरत मुल्क में लतीफ और खबीर का वहुवल लतीफुल खबीर, ये अल्लाह के नाम आ रहे हैं जो सूरत मुल्क में मैयत की हिफाजत का निजाम, कब्र की कुशादगी का निजाम बन रहे हैं। आप ये जो मुजरिमाना हालत में उस करीम के सामने पेशी देते हैं, इसमें बड़ी ताकत है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका, रब के जितने ताकतवर नाम, रब की जितनी ताकतें जहां जहां पोशीदा हैं, उन सारी ताकतों को जमा करके अल्लाह ने एक हर्फ में डाल दिया। वो लफ्ज, वो हर्फ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका। वो हर्फ और लफ्ज है अल्लाहुम्मा बिस्मिका। हज़रत अली दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सीन काफ। यह काफ, हा, या, आइन, सॉद, हा, मीम, आइन, सीन, काफ, ये अल्लाह की अस्माए हुस्ना है मख्फी। कैसे हैं? इनका तर्जमा क्या है? खुदा की बातें खुदा ही जाने। आप तो अपने जिस्म के इर्द गिर्द अल्लाह के तमाम सिफाती नामों की तासीर, सिफाती नामों की ताकत और अल्लाह के नाम के अंदर जो कुव्वत है जिससे जिस्म का बोटी बोटी, गोश्त, जर्रा, ईमान, अखलाक, इखलास, ये सारी चीजें महफूज हो जाती हैं इन सिफाती नामों की बरकत से। और जो आप मसनून दुआ का एक हिस्सा अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अनोखे लफ्ज हैं। और बकौल एक अल्लाह वाले के इन मसनून दुआओं ने अर्श की कबूलियत के रास्ते देखे हुए हैं, कबूलियत के रास्ते देखे हुए हैं। क्यों? मसनून दुआएं आई ऊपर से हैं। जो एक दफा रास्ता देखता है, वो जाते हुए वो उस रास्ते का पता होता है। मसनून दुआएं कहां से आई हैं? अर्श से आई है ना। तो इन्होंने कबूलियत के रास्ते देखे हुए हैं, इनकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। और फिर ये जो लफ्ज है ना, कहफ, कहफ, इस लफ्ज में बड़ी ताकत है, इस लफ्ज में बड़ी कुव्वत है। कहफ। आज भी कोई नाम ऐसे हैं जिन नाम में नहूसत भी है, लानत भी है। नहूसत है, फिरौन नाम में नहूसत है, निमरूद नाम में नहूसत है, शद्दाद नाम में नहूसत है, अबू जहल नाम में नहूसत है, और कई नाम है। नहूसत है, जुल्मत है, लानत है। और इन नामों को हमारे अमलियात, तावीज़ात की दुनिया में अनोखी जगह इस्तेमाल किया जाता है। आज भी ये नहूसत है, जुल्मत है, जिल्लत है। वो फिरौन नाम है, कोई भी नाम। मेरे नाना रहमतुल्लाह अलैह के एक जानने वाले थे, उनका नाम था गमदार। गम नाम तो अल्लाह बख्श था, उन्होंने अपने नाम के साथ गमदार लिखा हुआ था। मैंने सारी जिंदगी उनको गमदार देखा है। नाना के ताल्लुक की वजह से मैंने जिंदगी के आखिरी अय्याम में उनको महाना लगाया हुआ था।
एक दफा मैं गया, सख्त तरीन गर्मी, टूटी चारपाई, सर के नीचे सिरहाना नहीं था, गुर्बत की भी इंतहा, बुढ़ापे की भी इंतहा, मोटी ऐनक लगाते थे। मैंने सलाम किया, अच्छा तारिक पोतराई, खुश हो गए, उसे पता है तारिक आएगा, कुछ देकर जाएगा। उसकी जिंदगी में गम ही गम देखे, नाम का जिंदगी पे असर है। कहफ, कहफ, असहाबे कहफ। दकियानूस बादशाह था जो अल्लाह की इबादत नहीं करने देता था। दकियानूस बादशाह का नाम दकियानूस था, जो रब की इबादत नहीं करने देता था, रब की इबादत नहीं करने देता था। कहता था मैं रब हूं। अल्लाह को, अल्लाह के वाहिद होने को, खुदाई यकता, अल्लाह के वाहिद होने को मानने वाले कहने लगे क्या करें, क्या करें। बर्रे सगीर में एक वक्त आया था, एक तहरीक चली थी, उसका नाम था तर्क मवालात, कि बर्रे सगीर अब दारुल हर्ब है, यहां से हिजरत करो और मदीना जाओ। कई बुजुर्ग हिजरत कर गए थे कि अब यहां ईमान बचाना, इस्लाम बचाना, अल्लाह का नाम बचाना मुश्किल हो गया है। एक बहुत बड़ा एक बाब है ये। तो वो बुजुर्ग अल्लाह वाले जवान थे, वो निकले, वो छह थे, वो छह थे, और वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ हिजरत करके, कि बादशाह ना जीने देता है, ना अल्लाह अल्लाह करने देता है, ना जिंदगी गुजारने देता है। बादशाह को पता चला तो बादशाह ने पीछे उनके बंदे छोड़े, ये कहां जाते हैं, पकड़ो इनको। बादशाह के बंदू से बचते बचाते एक जगह जा रहे थे, तो एक चरवाहा था, वो भी उनका साथी था। कहने लगा अगर अल्लाह के लिए सफर कर रहे हो और अल्लाह के लिए हिजरत कर रहे हो, मुझे भी साथ रखो। साथ हो गया। जब वो साथ हो गया तो उस चरवाहे का कुत्ता भी साथ हो गया। एक अल्लाह वाले ने कहा कुत्ता बंदे का साथी है, बिल्ली घर का साथी है, बिल्ली कभी घर नहीं छोड़ेगी, कुत्ता बंदा जहां जाएगा वहीं जाएगा। अब इन्होंने कहा कि कुत्ता शोर करेगा, कोई चीज आ जाएगी, भौंकेगा, शोर करेगा, और हमारे पीछे बादशाह दकियानूस के बंदे लगे हुए हैं। तो कुछ दुर्वेशों ने अजीब बात कही कि ना मैं पौंका, ना मैं टौंका, ते ना मैं शोर मचावा। कुत्ते को कहने लगे तू जा यहां से, तो हमें पकड़वाएगा। क्यों? ना मैं पौंका, ना मैं टौंका, ना मैं शोर मचावा, नेका दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊं। और बाज किताबों में यहां तक आता है अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह उस कुत्ते को इंसानी शक्ल दे के इन दुर्वेशों के साथ जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह हर चीज पे कादिर। कहफ, गार वाले दोस्त, उनका अल्लाह के लिए सफर करना ऐसा हो गया कि रब ने उनका कुरान में तस्करा किया। सूरत उस नाम की है, आज भी उनके नाम पे रहमत है, बरकत है। आज भी जो बंदा उनका नाम लेता है, जादू जिन्नात थर थर कांपते हैं लफ्ज कहफ से। चोरी, दुश्मनी, हसद, कीना डरते हैं लफ्ज कहफ से, कहफ से, लफ्ज कहफ से। आज भी, आज भी। और जहां उंगली से कहफ लिख तो हिफाजत है, जहां उंगली से हवाओं में काफ लिख तो किफायत है। काफ पढ़ लो बरकत है। आपके सामने कहफ के कितने फायदे खुले होंगे, बेबहा। मैं जब से बता रहा हूं साल साल। और कितमीर उनका कुत्ता है, कुत्ता है। मेरे हुजूर ने बद्दुआ दी थी, अल्लाह अपने कुत्तों में से कुत्ता इन पे मुसल्लत कर दे। क्या किया? सारा काफिला दाएं बाएं, सारा काफिला दाएं बाएं लेटा, उनको दरमियान में लिटाया। रात को सबको नींद आई, कुत्तों में से कुत्ता आया, उसने फलांग के उनको चीरा फाड़ा और उनको टुकड़े करके चला गया। मेरे काका ने फरमाया था, जलाल में आके उन्होंने इतना सताया था, अल्लाह अपने कुत्तों में से कुत्ता इन पे मुसल्लत कर दे।
आज भी जो कुत्तों में से कुत्ते हैं, इंसान नहीं, कुरान उनको कहते हैं उलाइक कलानाम बलहुम अजल, वो जानवर नहीं, वो कुत्ते नहीं, वो खिंजीर नहीं, वो बंदर नहीं, वो बदतर हैं। आज भी लफ्ज कितमीर उनके लिए नंगी तलवार है। काली दुनिया हो, काले लोग हों, काले रोग हों, काला जादू हो, काली देवी हो, काले बोल हों, काली राहें हों, काले हर्फ हों, काले फैसले हों, इन सब के लिए कितमीर और कहफ नंगी तलवार है। आप तो अजब काम कर रहे हैं, रोजाना मुजरिमाना हाजिरी में इतनी ताकतवर तरीन चीजों को अपने जिस्म के इर्द गिर्द लपेट रहे हैं। नूर की डोरियां हैं, रेशम की डोरियां हैं, रूह की डोरियां हैं, लपेट रहे हैं। और दुश्मन दूर से देख के कहता है ख्याल करना, इसके जिस्म के साथ अल्लाहुम्मा बिस्मे का है, इसके जिस्म के साथ कहफ है, इसके जिस्म के साथ कितमीर है, हट जाओ, इससे दुश्मनी ना करना, गले पड़ जाओगे। इसको ना छेड़ना, सब कुछ तुम्हारे गले पड़ जाएगा, मुसीबत पड़ जाएगी, छोड़ो इसको। वो ताकतवर हर्फ हैं जिनकी मैं तशरीह मुख्तसर कर सका हूं, वो ताकतवर बोल हैं, जाग रहे, ये वो ताकतवर बोल हैं। आप मैं जिनकी ताकत का अंदाजा, जिसकी ताकत का अंदाजा नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कभी वक्त हो मैं इन बोलों को खोलूं। अल्लाह ने जो अपने इल्म में से इल्म अता की है, अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं, कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका की ताकत क्या है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुझे किला बजनोट में मिला था, किला बजनोट में मिला था, ये वहां मिला था। ये लफ्ज किसने दिया था, कैसे मिला था, अनोखी दास्तान। ये किसी किताब में ये लफ्ज की तासीर ये नहीं लिखी, मैंने बड़ी किताबें देखी। एक अल्लाह वाले थे, उनकी बातों को लोग सुन के कहते थे किसी किताब में मिलती भी नहीं पर गलत भी नहीं। समझ गए, किसी किताब में मिलती भी नहीं पर गलत भी नहीं। लदुन्नी गहबी गैबी पुरअसरार कैफियतों का अल्लाह इल्म में से इल्म देता है। अल्लाह के हाँ, या अलीम अल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा, मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। अपने इल्म से अल्लाह इल्म अता फरमाता है। मेरे ऊपर सहरा पे, इंडिया के बॉर्डर पे एक किला है, वहां ये अल्लाहुम्मा बिस्मिका का इल्म खुला था। सदा एक बात याद रखिएगा, इगाल फकीर ने याद रखा है, मतवन्यो यार विसारी, एक बात याद रखिएगा, वही और इल्म चलते फिरते मिला है। वही चलते फिरते, कोई वही का हिस्सा मक्का में, कोई मदीना में, कोई हुनैन में, कोई बदर में, कोई ताइफ में, ऐसे वही का निजाम चलते फिरते मिला है। और इस पे इसका इल्म चलते फिरते आएगा, जो आप चल फिर के यहां आए हैं। और इसका अमल भी चलते फिरते मिलेगा, घर बैठे किताब पढ़ ली बिस्तर पे कभी नहीं मिलेगा। लाहौर का एक बंदा मैं जानता हूं, फौत हो गया है, उसने शराब पे किताब लिखी है, शराब के नुकसानात क्या है, रोज पी के सोता था। कहने लगा तूने किताब बैठ के लिखी, उसने किताब सो के पढ़ी, ना जिंदगी उसकी बदली ना उसकी बदली, जमी बदली जमा बदला, मकी बदले मका बदला, न तू बदला न मैं बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला। मेरे एक शाह साहब हैं, दोस्त फौत हो गए, कहने लगे मैं बांग्लादेश गया तो मेरी किताब सुन्नत नबी और जदीद साइंस का तर्जमा बांग्ला जबान में, मुझे इल्म नहीं था, वहां किया, छप रहा, बिक रहा। उन्होंने कहा आप पाकिस्तान से आए हैं, ये बंदा है तारिक नाम का बंदा। हाँ मैं जानता हूं, मेरे तो दोस्त है। अच्छा ये बताएं किताब इसने लिखी है, इसकी जिंदगी में कोई रत्ती जरा दीन है? हाँ, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा किताबें लिखने वाले, किताब क्या होती है, जिंदगी क्या होती है।
आपने तो असहाब काफ की जिंदगी की हिजरत की है। आप में से कोई पूछे कहां से आए, फला शहर से, फला मुल्क से। क्यों आए? लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए आया है। ला मतलूबी, ला मरगूबी, ला महबूबी। हाय हाय, मेरा कोई मतलूब नहीं, मेरा कोई महबूब नहीं, मेरी कोई मरगूब नहीं, मेरी कोई लज्जतें नहीं। अल्लाह तू ही तू है, अल्लाह ही तू ही तू है। मेरे दोस्तों, ओ अल्लाह वालों, मेरा रब आपको किस नजर से देखता होगा? जिनका उठना, जिनका बैठना, जिनके कदम अल्लाह के लिए उठे हैं। असहाब काफ यही हिजरत करके तो गए थे। आज कुरान में उनका तस्करा, असहाब कहफ, तो कहफ उनके कुत्ते के नाम में भी ताकत है। हाँ, उनका जो कुत्ता है, अल्लाह अल्लाह। कुछ अमल ऐसे हैं कि जो बंदा सताए, जो बंदा परेशान करे, कितमीर का एक अमल है। मेरे हजरत ने मुझे एक दफा करवाया था और फरमाया था, देख ये तेरे पास है, चाहे तो अपने मुखालफों को कितमीर के हवाले कर, और कितमीर वाकई टुकड़े कर देता है। चाहे तो सब्र हौसला करके सारे गम और सारे दुख और सारी चीजें सह के कब्र में चले जाना। बोल क्या करेगा? मैं आप जो फरमाएं। कहा मैं तो कहूंगा, मुझसे फरमाने लगे कि कितमीर से दोस्ती तेरी मैंने करा दी है, ताल्लुक बनवा दी है, और इसके जिम्मे कुछ न लगाना। बस असी चुप चुप दुखड़े सहने हैं, दुनिया नु तो कुछ नहीं कहने हैं। असी नाम आका दा लेने हैं, असी हाल दुआई की करनी, हम शोर शराबा क्या करेंगे। कितमीर, मुझे एक दफा कितमीर की दावत कराई थी। लंबी कहानी है। मैं के एक अमल कराया, अमल करके कहा, जा शहर में जहां कुत्ता मिले उसको कहना फला जगह फला वक्त में कितमीर की दावत है आना, और बाकी को भी कह देना। और खास तौर पे अगर काला कुत्ता मिले तो उसे खास तौर पे कहना। उधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर फिर कह के आ गया। उनके लिए दूध रख दी, फिरनी रख दी, चीजें रख दी। ओहो, फला जो वक्त हुआ, उसी वक्त में सारे कुत्ते, कोई इधर से आ रहा, कोई इधर से आ रहा, कोई इधर से आ रहा, उधर से आ रहा, और सबने सारे से झुकाए हुए। तो शेख ने फरमाया, अब कहे कितमीर की दावत है भाई, खा के जाओ। हमारे अजीज और रहमान अजीज साहब थे, लाहौरी दरवाजे कर पिशावर में, फौत हो गए। कहने लगे मैं छोटा सा, तो हमारा यहाँ एक मजदूर होता था, मजदूरी करता था, और हमारे पिशावर में बिच्छू बहुत होते थे, बहुत बिच्छू। कोई इमारत टूटती तो बिच्छू ऐसे निकलते थे। वो क्या करता था, बिच्छू को उठाता था, टोपी उठा के टोपी के अंदर बिच्छू डाल देता था, और यहां टोकरी उठाता था मिट्टी की। फिर बिच्छू निकलता था, बिच्छू को उठा के टोपी के अंदर रख देता था। कहले हम शरारती बच्चे थे, हमने कहा कि इसकी टोपी को इसी तरह किसी छड़ी से फेंकें, इसके अंदर बिच्छू है। कहले हमने क्या किया, हम कुछ छड़ी ले आए, वो जा रहा था, उसकी टोपी को जो मारा, टोपी वो गई, बिच्छू सारे बिखरे। उसने पकड़ के यूं एकदम लकीर खींची, वो बिच्छू जाने वाला, इधर आओ। इंसान का बच्चा कहां जाता है, खाना खराब का बच्चा, तुम्हारा रसवार यहां पड़ा है। पठान बैठा था ना, उसका खरगोश भाग गया। उन्होंने कहा खाना खरगोश भाग गया। उन्होंने कहा कोई नहीं, नस्वार खत्म होगा फिर आएगा। हमने इसको नस्वार लगाया है, भाग गया कोई बात नहीं, इसकी नस्वार जब खत्म होगी फिर आएगा ये। उन्होंने कहा लकीर लगाई उसने, वो सारे बिच्छू जो उधर भाग रहे थे उधर सारे आए, उन्हें पकड़ा, टोपी में यूं डाला, फिर टोपी रख के हमें गुस्सा गालियां देते हुए कहने लगा तुमसे पूछूंगा मैं। कायनात के राज हैं कितमीर के साथ। हाँ, आप असल में कितमीर को कहते हैं। कितमीर ख्याल करना, जादू आएगा, जिन्नात आएंगे, हासिद आएंगे, हसद आएगा, दुश्मन आएंगे, दुश्मनी आएगी, बीमारियां तकलीफें बलाएं वबाएं आएंगी, किसी भी नाम से बलाएं वबाएं आएंगी। ख्याल करना, हमारे इर्द गिर्द पहरा देना। और असहाबे काफ से कहा, सुने
हमारे लिए दुआ करते रहना, शफकत का हाथ रखना। और अल्लाह बिस्मिक का कहा, मौला सब कुछ है तो तू, सब कुछ तू ही तो है। ये रोजाना की मुजरिमाना हाजिरी कितनी हैरत अंगेज आप इस अमल को कर रहे हैं। घड़ी सामने जाती है, वरना तो ये मजमून 3-4 घंटों का है, 3-4 घंटों का है। आओ, थके हुए होते हैं बहुत ज्यादा। रात को सोना, फजर के बाद सोना, जोहर के बाद सोना, असर के बाद कमर सीधी करना, थके हुए होते हैं। एहसास होता है, एहसास होता है। मैं गया एबटाबाद में, वहां एक जगह का नाम है बांडा सप्पा। किसी ने देखा, सुना? हाथ खड़ा करें। है बांडा सप्पा। और नसीर अहमद साहब थे, बुजुर्ग बूढ़े फौत हो गए। मैंने पूछा ये बांडा सप्पा क्या है? कहने लगे यहां एक वक्त होता था, सांप ही सांप थे, नांग ही नांग थे, इतने ज्यादा। मैंने कहा कोई हल और तरियाक? कहा काफ कितमीर। और याद रखिएगा, सांप हर सांप नहीं होता, सांप जिन्नात बहुत होते हैं। हमारे वहां खुरमपुर में मस्जिद है, अम्माबा के नाम पे बनाई थी मैंने। तो वहां एक कारी साहब थे, कहने लगे कि वो हर बात पे कहते थे हजरत वाकया बन गए, उनका तकिया कलाम का वाकया बन गया। तो मैंने कहा वाकया क्या बना? कहने लगे मेरे जो है ना, एक तो चारपाई के नीचे बकरी और कुत्ता आता था, उसकी पसलियां होती थी, चारपाई उठाता था, देखता तो कुछ भी नहीं। और बाहर ऐसे होता था जैसे आंधी है, इतनी ज्यादा आंधी, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, ठा ठा दरवाजे हो रहे, ट्रक टूट रहे, बाहर जगह तो कुछ भी नहीं। कहने लगे तंग करते हैं मुझे। मैंने उसे एक इस्म बताया, एक इस्म बताया, और फिर असहाब कहफ और कुतमीर इसकी तरतीब बताई। मैं कहा ये पढ़ना आप। कुछ अर्सा उसने पढ़ा तो देखा कि अंदर एक सांप बैठा है उसी कमरे में। बंदों को बुला के लाया, गौर से सुनिएगा, उन्होंने सांप को मारा, सांप को उठा के 7 झाड़ियां पड़ी थी वहां फेंका, इधर मुंह किया तो वो नहीं था। सांप मारा, 100 दफा मारा, सांप पड़ा हुआ, अभी देखा तो नहीं था। मुझसे कहने लगे क्या? मैं क्या वो सांप होता तो होता, अल्लाह के कलाम के सामने वो बेबस हो गए थे, उसकी मौत आ गई, वारिस उठा के ले गए, वो जिन था। आप अल्लाहुम्मा बिस्मे का कहफ की तमीर। मैं कहता हूं एक एक मोती जो तस्बीह खाने में आपको मिल रहा, और एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, आप हैं कितने खुशकिस्मत मर्द और खवातीन जो तस्बीह खाने की जिंदगी में हैरत अंगेज मोती, हैरत अंगेज कमालात, अपनी और अपनी नस्लों की हिफाजत, किफायत, किफालत, मदद का अनोखा निजाम ऐसे चुपके चुपके ले रहे हैं, और सलवटों में ले रहे हैं, और ऐसे मीठा मीठा ले रहे हैं। हाँ, मैं कहता कि सतून को जो बंदा इसे पकड़ के आधा घंटा खड़ा होगा, 10 मिनट खड़ा होगा और वजीफा करेगा। मुझे एक बंदा कहने लगा मेरे पास एक वजीफा। क्या वजीफा है? कहने लगे एक टांग पे खड़े हो, एक टांग रखें चारपाई के ऊपर, उसकी जो पैंती होती है ना लकड़ी चारपाई वाली, उस पे एक टांग हो, एक टांग लाठी की हो, लाठी के साथ लटक के ना, लाठी को दें बाजू के अंदर, और ऐसे खड़े होकर सूरत मुजम्मिल पढ़नी है 40 बार। ओए होए होए। अब मैं अगर आपको कहूं कोई पंखे से लटके, कोई तार से लटके, कोई, मेरा एक लोहार है अब्दुल्ला लोहार, मुझे कहने लगा मैं पीर साहब हैं, मैं वहां जाता रहता हूं, कोहाट से आगे को मेरे पीर साहब हैं। मैं कि या अल्लाह कैसा पीर साहब है। अच्छा, जब भी वो जाता था वो शिलवार पहनता था, पैके धोती पहन के जाता था। मैंने एक दफा क्या धोती पहन के? कह रहे वो नंगा करके ना सब मुरीदों को खड़ा कर देते हैं, कहते हैं नंगे आए हैं नंगे जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, सब मुरीद खड़े हो जाते हैं।
अच्छा, कहते हैं हमने आए भी नंगे हैं बदन पे, नंगे ही जाएंगे तो कफन सिर्फ ऐसे लपेटा जाता है। फिर एक टांग उठाओ, एक बाजू उठाओ और एक लफ्ज पढ़ो, और ये एक टांग बाजू उस वक्त तक उठाओ जब तक गिर ना पड़ो, फिर वो बाजू रखो और वो टांग उठाओ, फिर पढ़ो। वो अब्दुल्ला उसका, मैं या अल्लाह ये कैसा है? कह रहे मेरे पीर साहब हैं, मैं साल के बाद वहां जाता हूं। मजदूर आदमी था बेचारा, इधर उधर से चीजें इकट्ठी कर गठड़ियां बांध के पीर साहब के पास जाता था। शलवार नहीं पहनता था, धोती पहनता था। उन्होंने कहा वहां तो हर चीज उतारनी है ना। या करीम, ये मैं हकीकी वाकया बयान कर रहा हूं। फिर मैंने उससे बहुत दोस्ती लगाई, आखिर जाना छोड़ गया। अल्लाह वाला सोच, अल्लाह ऐसे राजी होता है और इन अदाओं से रब राजी होता है। क्या मेरे मदीने वाले के सहाबा ने, किसी ने अमल किया, कुछ हुआ? वो बंदा है, ठीक है बेचारा जैसे भी है, उसकी राहों को छोड़, सच्ची अल्लाह की राहों पे आ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कहफ कितमीर, कहफ कितमीर। एक वाकया याद आया। मेरे सामने ये बैठे हैं डॉक्टर साहब, इनकी वालदा रहमतुल्लाह अलैहा आती थी। उनके मैंने बताया, मैंने कहा डॉक्टर साहब की अम्मा है ना, हाँ, उनके कहती थी शादियां हो जाएं, घर के मसाइल हैं। मैंने उनसे कहा कि आप कहफ कितमीर पढ़ा करें और सारा दिन कहफ पढ़ा करें। मुझे आके कहने लगी 7 घोड़ सवार हैं और एक घोड़ा खाली है, 8वां। मुझे बिठाते हैं और मुझे गार में ले जाते हैं, वहां हीरे जवाहरात झोलियां भरवाते हैं और मुझे घर छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि कुछ हिस्सा तेरा है, कुछ हिस्सा हकीम साहब का है। ख्वाब में मैं देखती हूँ, हकीकत में नहीं कहेंगे ना, ख्वाब में मैं देखती हूँ। आपकी वालदा याद है? हाँ, आज कितने साल हो गए फौत हुए? किस साल में फौत हुई? 2013 में। मुझे अचानक याद आया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। क्या अमल करते हैं? मौजू देते हैं, बहुत बड़ा घड़ियां देते हैं सामने, हैं? उतार नहीं देते, आप थके आ रहे हैं, मारे कुटे। इसके अंदर तासीर क्या है? मैं आपको कितने वाकयात, अब तो मेरे अंदर आमद हो रही है वाकयात की। मैं कोई किताबें पढ़ के नहीं आता, मुताले करके नहीं आता। मैं कहता हूं अल्लाह खैर सुझा दे, खैर सुझा दे, खैर सुझा दे। अल्लाह मनव्विर कल्बी बिइल्मी का वस्तामिल बदनी बिताअतिक व बारिक वसल्लम। मौला खैर सुझा दे। अल्लाह वालो, ये तस्बीह खाना शिर्क और बिदत की तरफ नहीं चला रहा। आप मेरी कब्र में आके ठोकर नहीं मारेंगे। जालिम खुद भी शर की राहों पे चला, बिदत की राहों पे चला, शिर्क की राहों पे चला, हमें भी शिर्क और बिदत की राहों पे चला के मर गया। आप मेरी कब्र में आके जरूर कहेंगे सखिया का इस परदेसी पे रहम कर, इसने हमें खैर की राहें लगाई थी, इसने सच की राहें दी थी, अल्लाह इसको माफ कर दे इंशाअल्लाह। अमल है, ताकत है इसमें। और आप सारा दिन में जो अमल कर रहे हैं, हर अमल में एक अनोखी तासीर है, हर अमल में एक अनोखा कमाल है, हर अमल में के अंदर एक अनोखा निजाम है। इसलिए कहा इश्क कहते उसे हैं समझ आए ना आए, लुत्फ़े सजन दम बदम। कहरे सजन गाह गाह ईवी सजन, वाह वाह ओवी सजन वाह। जरूरी नहीं हर चीज समझ आ जाए। तस्बीह खाने ने चुन चुन के आपके लिए मोती तैयार रखे हैं, चुन चुन के मोती आपको दिए हैं कि आप आए हैं अपनी नस्लों की, अपने घर वालों की, अपने रिस्क की, अपनी सेहत की, अपने ईमान की, अपने इखलास की, अपने अखलाक की, अपनी हुर्मतों इज्जतों की हिफाजतें, किफायतें, किफालतें, बरकतें लेकर जाएं।
ये अनोखा निजाम है। इन लफ्जों के अंदर ताकत है, और ये लफ्ज मेरे खुद साख्ता नहीं है, ये कुरान के लफ्ज मौजूद हैं, ये हदीस के लफ्ज मौजूद हैं। मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, घड़ता नहीं हूं, मैं सिर्फ बताता हूं। मैं वजीफे घड़ता बनाता नहीं हूं, मैं सिर्फ बताता हूं। मैं कासिद हूं, मैं कासिद हूं, मैं डाकिया हूं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। आए फिर पढ़ते हैं बैठ के। मेरे ख्याल में आज फिर जज्बा ज्यादा ही होगा, है ऐसा ना, क्योंकि आज फैदों का पता चला। पहले असल में था कि ठीक है, पता नहीं क्यों और मुझे कहने लगा ए पीर कित्थों ले आया तू। मुझे देखा ना उसने कहा ये पीर कहां से ले आया तू, यहां कई पीर भाग भगा गए, तू ये पीर कहां से ले आया। आप भी कहते हैं पता नहीं कहां से चीजें ले आता है। सब कुछ मौजूद हैं, सबके हवाले मौजूद हैं, सबके रेफरेंस मौजूद हैं, सबके लिंक्स मौजूद हैं, और क्या करें, हम पढ़ते ही नहीं। हमारा जिंदगी का पढ़ने का निजाम ही और है। मैं गया गोशा दरूद सलाम में, कराची में दर्स था, तो मैं मजमा आ रहा था, मैं गोशे की तामीरात की कर रहा था, विजिट सारा तामीरात हो रही। तो उन्होंने मिंबर पे बिठाया एक साहब को, वो जो व्हाट्सएप में पढ़ता है ना मोबाइल में, वही मिंबर पे बयान कर। मैं खुदा खराब करी लहाई को तले, इसको नीचे उतारो, ये क्या कर रहा है। वो जो व्हाट्सएप के अंदर बेचारा सारा दिन पढ़ता रहता है, फिर वही उसने बोलना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने मोबाइल पे अपने व्हाट्सएप रखा ही नहीं है। एक बुजुर्ग थे, वो कानों में रुइयां दे के चलते थे, सारी उम्र ऐसी रहा, मेरे कानों में कोई आवाज ना जाए, ताकि मेरे अंदर का तखय्युल, ख्याल, इमेजिन, मेरे अंदर की मौजें, मेरे अंदर का इल्म, मेरी अपनी सोचें, वो ऐसी मौजजन रहें। और यकीन जानिए तस्बीह खाना वो देता है जो शायद कोई और मिंबर देता हो। अब तो तस्बीह खाने के मिंबर और अबकरी रिसाले की कॉपियां होनी शुरू हो गई हैं। लगता यह है कि सारी दुनिया अब वजीफे ही बता रही है। इससे पहले 2 साल पहले उठाओ, 3 साल पहले उठाओ, अब सारी दुनिया मेरे ख्याल में अब इसी काम पे लग गई है। तस्बीह खाने ने एक सोच दी है, एक थिंक दी है, एक अंदाज दिया है, जिंदगी दी है, और ये वो जिंदगी थी जो हमारे बड़ों की जिंदगी थी, जिसे हम भूल गए थे। इसलिए मैं कहता हूं, मैं वजीफे बनाता घड़ता नहीं हूं, मैं बताता हूं, मैं डाकिया हूं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ। आमीन। पूरे बदन पे फेर लिया करें जहां तक हाथ जाता है। सत्ताईस रमजान को दुआ से पहले अर्ज कर दूं, 27 रमजान को निकाह की तरतीब, जो हजरात निकाह करना चाहें तस्बीह खाने में होते हैं, 9 बजे से पहले आए लाजिम है। और रमजान की 11 और 12 की रात को जो नफिल होते हैं वो इज्तिमाई यहाँ नफिल पढ़े जाएंगे। इज्तिमाई से मुराद हर बंदा अपना पढ़ेगा, और फिर इसके बाद इज्तिमाई में दुआ कराऊंगा। वो नस्लों के नसीब मुकद्दर शादियों के लिए और रिस्क के लिए बहुत ही हैरत अंगेज चीज है। आपको कॉपी दी है मुशाहिदात और तजर्बात की, रोज लिखें, रोज लिखें, रोज लिखें। उसमें तावीज, किसी अमल, कोई रूहानी टोटका, कोई तिब्बी टोटका,
दिल खोल के लिखें उस कॉपी में, उसकी कुरानंदाजी होगी और टोकन दिया जाएगा। और हमारा जो हवेली का टोकन है, मैं रोज साथियों से अर्ज करता हूं, मशवरा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये अब जल्द वो हवेली की जो कॉपी है उसकी कुरानंदाजी करेंगे। रोज मैं दरखास्त करता हूं, माशाल्लाह बहुत मेहनत कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी इंशाल्लाह होगी। और यहाँ छोटा मोटा काम, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, छोटी छोटी चीजें हैं, खिदमत में हिस्सा मिलाएं। 1 घंटा 1.5 घंटा पेश करें अपने आप को कि अब अगर इबादत हुई, खिदमत ना हुई तो मैं अधूरा होके जाऊंगा। खिदमत भी हो और इबादत। और किस्मत वाले हैं, बाज माशाअल्लाह मुख्तलिफ शोबों की खिदमत कर रहे हैं। और कागान की पिछले दफा एक बहुत बड़ी गलती हुई, हर दफा हुई, कि बाज लोग कागान में जिनके घर जो है महफिल होती है, उनके घर चले गए कि जी हमें खाना भी दें, रिहाइश भी दें। बड़ी परेशानी हुई। हरगिज ना जाएं, अपनी होटलों, अपनी चीजों का खुद इंतजाम करें। हरगिज ना जाएं, किसी के लिए परेशानी का जरिया ना बने। अल्लाह आपको खुशियां, इज्जतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रूहानी जानिसारों की कल टीम बनाई थी, रूहानी जानिसारों की कल जमात बनाई थी, याद है? उन्हें एक 313 बार हामीम ला युनसरून, एक तस्बीह या हफीज़ो या सलाम, और एक निसाब मखदूम सा वाला, यानी अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, 3 दफा कुल हुवल्लाह। ये रूहानी जानिसारों की कल मैंने जमात बनाई थी और 40 दिन ये अमल चलेगा, 40 दिन अमल चलेगा, और बहुत तवज्जो और बहुत ध्यान से। याद है या नहीं है? याद है? और शुरू कर दिया जज्बे वलवले के साथ, खवातीन ने भी मर्दों ने भी, जज्बे वलवले के साथ या ढीले ढाले हैं? हाँ, पूरे जज्बे, पूरे जज्बे के साथ, पूरे वलवले के साथ। बहुत कमाल अमल है। अच्छा ये बताएं, सारा दिन के जितने भी मामूलात हैं उसमें पूरी जिम्मेदारी से शामिल हो रहे हैं जी? सुबह उठना और फिर सेहरी। अच्छा, खाना फौरन तशरीफ ले जाए, खाना खाते ही फौरन दस्तरखान छोड़ दे, ताकि औरों को मौका मिले और खिदमत वालों को मौका मिले, वो दस्तरखान फौरन समेट लें। खाने में फौरन तशरीफ ले जाए, फौरन तशरीफ ले जाए और खाना खा के और फिर उठ जाएं। और दूसरी चीज ये है कि एतराज ना करें, एतराज ना करें। ये नूरी लंगर है, हमारे अहबाब कोशिश कर रहे हैं रोज खाना बेहतरीन से बेहतर हो, चाय पकी हुई लाजवाब हो, दही बेहतरीन हो, सालन अच्छा हो, रोटी नरम हो, नरम होती है रोटी नरम हो, हर चीज में कोशिश होती है। आप हजरात शाही मेहमान हैं, आप शाही मेहमानों की कोशिश है कि ज़ियाफत भी शाही हो और सादा भी हो लंगर और कुशादा भी हो। मैं रात सुबह अपने बेटे से कह रहा था, बेटा मुझे वो मंजर याद है, मेरे साथ तो ना हुआ, एक दफा मेरे साथ हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे पहचान लिया। इस मुल्क में एक जगह है, एक जगह है, वहां गए। अब मेरी तरफ देखना जरा, हाँ भाई आप दोपहर यहां हैं? उन्हें हाँ हैं। अच्छा ठीक है। शाम है? उन्होंने कहा हाँ है। बरामदे में लाइन बना दी, कोई दस्तरखान नहीं, पांव के बल बैठो, एक डब्बा पड़ा था, सारे उसी में पानी पियो। सब आए, एक एक रोटी हाथों में पकड़ा दी और चने की दाल छोटी सी दे दी। उन्होंने कहा भाई ज्यादा खाओगे सोओगे, जिक्र नहीं कर सकोगे, बस ये एक ही रोटी है। हमारा एक पहलवान था, वो गया वहां, कहीं जा रहा था, तो उन्होंने कहा रोजा वहां इफ्तार करते हैं, वहां के एक फकीर की का आस्थाना है, वहां रोजा इफ्तार करते हैं। वहां गए तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कितने हजरात हैं? उन्होंने कहा इतने हैं। ठीक है, एक खजूर और पानी, ये भाई रोजा इफ्तार हो गया, खाना जो है नमाज के बाद। ठीक है,
नमाज के बाद जब खाने पे आए तो सबको एक एक रोटी पकड़ा दी, एक रोटी, और वो बेईमान रोटी आई, छोटी सी पतली, पकड़ा के ना छोटा सा सालन, ना बस भाई इतना खाओ, ज्यादा खाओगे सोओगे, जिक्र करो। वो पहलवान था बेचारा, खाने पीने वाला था, एक कमरा था उसमें डिशें जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। थोड़ी देर हुई, उस कमरे में से रोटियों के टुकड़े बच के आए, लकड़ी का डब्बा था उसमें डाला, चुपके से अंदर गया, झोली भर के ले आया रोटी के टुकड़ों के। वो खादिम ने देख लिया, ओए क्या करते हो? उन्होंने कहा मेहरबानी कर, हम परदेसी हैं, भूख लगी। अच्छा फिर ठीक है, ये जितने बैठे हैं 60-70 सबको रोटी के टुकड़े बांटो, इतना टुकड़ा सबको आ गया। मैं बेटे से कह रहा था, मैंने कहा बेटा मैंने जगह जगह ठोकरें खाई हैं और जानबूझ के खाई हैं कि यहां आने वालों के साथ क्या सलूक होता है, यहां आने वालों के लैट्रीन कितने गंदे होते हैं, यहां आने वालों के वुजू खानों का क्या हाल होता है। बेटा मैंने ठोकरें जानबूझ के खा खा के कहा है, ना मेरे साथ ऐसा नहीं हो। अभी एक दरवेश थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि जी आपका बयान है, चलो जी। वहां एक साहब मिले, उन्हें कि ये वो है, ओए मुझे याद है 2001 याद है, 2001 में गया। अब हैरान होंगे, मैं दरवाजे पे जब गया ना, दरवाजे पे अस्सलाम वालेकुम, कहां से आए? मैंने फला जगह से। किस होटल में आपका कयाम है? मैंने उसको ऐसे देखा, मैं तो किसी फकीर की खानकाह में तस्बीह खाने में आया हूं। उन्होंने कहा यहां कोई कयाम नहीं, खाना नहीं। मैंने कहा सामने मस्जिद है। हाँ बिल्कुल नहीं, आप मस्जिद में नहीं रह सकते। 21 साल के बाद, 20 साल के बाद बंदा वो मिला ना, उसे याद नहीं है कि ये आया था। मैंने अपने बेटों को देखा है, मैंने कहा बेटा ये वो आदमी है, उसे याद नहीं है, ये वही है, वो मुझे बड़ी इज्जत दे रहा था, वो मुझे बड़ा एहतराम दे रहा था। पर मैं कह रहा था, मैंने कहा अल्लाह वाले तुझसे मैंने लोगों को सुलाना भी सिखाया, खिलाना भी सिखाया, तुझसे। अगर तू मेरे साथ ऐसा ना करता, ऐसा ना करता, तो मैं भी कहता था हाँ भाई किस होटल में आपका कयाम है। सारी दुनिया में लाइटें जाती हैं, सारी दुनिया में पानी मीठा ठंडा लाजवाब है, और सेहतमंद खाना, सेहतमंद इफ्तारी, सेहतमंद मशरूब, जड़ी बूटियां कीमती, सेहतमंद। ये वहां के धक्कों का एहसास है जो मैंने जानबूझ के खाए हैं, और एहसास हुआ है ना कमली वाले के मेहमानों के साथ क्या एहतराम। फिर भी एहसास है आपको वो इज्जत वकार नहीं मिल पा रहा जो आपका हक है, फिर भी मुझे नदामत है, फिर भी शर्मिंदगी है। आप शाही मेहमान, आप शाही मेहमान। मैंने आपके लिए टाफियां रखी हैं, अभी टाफियां देता हूं। मैंने कहा लाहौर ही चले जाएं, चुप करके जरा लाहौर ही चले जाएं, फिर मिल के खाएंगे। उस पर भी एक वाक्य सुनाता हूं। चलो, एक बंदा था, उसको मछली खाने का बड़ा शौक था, मछली खाने का बड़ा शौक था, और मछली भी मुफ्त में खाने का शौक था। आप जैसे सखियों ने दावत की, मछलियां तली, और मछलियां तल के लाजवाब बना के ना, दरवाजा बंद करके अंदर से, ये दरवाजे की रोजन झुरी से देख रहा था। इसे कहीं से पता चल गया कि मछली, चुप करके इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी मछलियां उठा के ना थाल में रख दी। अगर वो जालिम आ भी जाए तो उसको छोटी मछलियां खिला देंगे। ओला करके ओट में बड़ी मछलियां ठांक के रख। दरवाजा खटखटाया, कौन? कह रहे आपका दोस्त। कहने लगे देखो समझदारी काम आ गई। दरवाजा खोल के कहा मरहबा मरहबा मरहबा, ऊपर ऊपर से बिस्मिल्लाह आए। कहने लगे सुना है जी आज आपने मछलियां, बिल्कुल मछलियां पकाई हैं, ये मछलियां मौजूद हैं। वाह वाह, कमाल कर दिया। उसने मछली उठाई और ऐसे टेलीफोन मोबाइल की तरह ऐसे करने लगे, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, ओ हाँ अच्छा अच्छा। ये हैरान, या करीम ये क्या कर रहा है, ये क्या बात। उन्हें कहा ये क्या है, रोने लग गया।
انہیں آپ کو پتا ہے کہ میرا والد ڈوب کے مرا تھا اور اس کو مچھلیوں کھا گئی تھی، مجھے مچھلیوں کے ساتھ دشمنی اور غیر ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں کھاؤں گا، کہنے لگا ہم چھوٹی ہوں، جو بڑی پڑی ہیں انہوں نے کھایا تھا، ہم تو چھوٹی ہیں، وہ جو بڑی پڑی ہیں، لے آؤ میں اپنے باپ کا آج انتقام لوں گا، ساری مچھلیاں کھا، چل میرا بھائی۔ میں نے کہا لاہور ہی چلے جائیں، لاہور ہی چلے جائیں، پھر مل بیٹھ کے ٹافیوں کی کہانی چلائیں گے۔ ہاں، پردیسی کو ہنسانا بھی نیکی ہے، پردیسی کا دل خوش کرنا بھی نیکی ہے، نیکی ہے، نیکی ہے۔ چڑچنا تو کر روشنائی، ذکر کریں دے تارے ہوں، لالا دے وچ پھرن نمانے تے ککھ جنا تھیں بھارے ہو۔ او پردیسوں کے لیے تو تنکے ہی بھاری ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم ٹافی کا، اچھا ٹافی آپ کو ملے، استعمال نہیں کرنی، کھانی نہیں۔ 40 دن کے بعد نا، 40 دن کے بعد اس ٹافی کو سارے گھر کے ٹکڑوں میں یا کسی پانی میں ڈال دیں، کھل جائے، سارا پانی پی لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ابھی نہ کھائیے، اور ٹافی وہ لیں جو عمل کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں سارے لے لیں، خواتین بھی مرد بھی، اور یہ ہر حال میں عمل کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی، ٹافی آپ کو چلتے ہوئے دیتا ہوں۔ کوئی سوال آپ کا؟ کوئی سوال؟ جلدی بولیں جی۔ پنکھے؟ ہاں، چھاتی کا کینسر ہے، رسولی ہے۔ کون سخی بتائے گا اپنا مشاہدہ اور تجربہ جس چھاتی کے کینسر اور رسولی کے لیے؟ ایک تجربہ یہ آیا ہے، حامیم لایون سارون بہت پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں جی۔ ایک کہتے ہیں میرے پاس بندہ آیا، اس کی چھاتی میں کینسر تھا، میں نے 625 بار وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دی ہیں، اور یا کہاروں کا عمل پڑھنے کے لیے دیا، چھاتی کا کینسر ٹھیک ہو گیا۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ جی ہاں، قرآن شریف کی آیات شفا، ہاں آیات شفا، پانی دم کر کے پیا۔ آپ کی بیوی کا کینسر تھا، بیوی کا کینسر جو ہے وہ الحمدللہ کینسر ختم ہوا، شفا مل گئی۔ اسی آپ کی بیگم نے آپ کو بھیجا۔ اچھا بھی کسی کی بہن نے، بیوی نے، ماں نے، کوئی کتنے لوگ ایسے ہیں جو خاتون کے ذریعے آئے ہیں؟ کھڑا کریں ہاتھ، ہاں بہت سارے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک تو آپ کا یہ فائدہ، اور کسی کا کوئی مشاہدہ چھاتی کے کینسر؟ سملو کا پاؤڈر کیپسول میں، سملو کا پاؤڈر کیپسول میں صبح شام لیں دودھ کے ساتھ، اور 1.25 حامیم لاجن سارون پڑھیں۔ اور جی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہی ہے یعقوب علیہ السلام کی نہیں ہے؟ ہاں یہی ہے نا، یہ تو ایوب علیہ السلام کی دعا۔ ہاں یہ دعا بہت زبردست ہے، اس کو 1,00,000 سوا لاکھ پڑھیں۔ پھٹکڑی اور ماجو برابر وزن پیس کے چنے کے دانے کے برابر صبح دوپہر شام دودھ مکھن کے ساتھ دیں جی۔ ہلدی اور ریوند خطائی دونوں کو برابر پیسیں، اور آدھی چمچ صبح دوپہر شام ہلدی اور ریوند خطائی یہ استعمال کریں کینسر کے لیے جی۔ دھماسا بوٹی ہر قسم کے کینسر کے لیے فائدہ مند ہے،
कूट पीस के बड़ा कैप्सूल या चौथाई चमची सुबह दोपहर शाम दूध या मक्खन के साथ। जी, और किसी का मुशाहिदा? और किसी का मुशाहिदा? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि भीगे हुए बादाम, जो बादाम भिगो के रखें, और जो नारियल भिगो के रखें, नारियल भीगे हुए और बादाम की गिरियां भीगी हुई। लेकिन बादाम की गिरियों में एक मैं मुशाहिदा कहूंगा, ये मोटे और बरेलर बादाम ना लेना। मोटे बादाम बरेलर बकी बिल्कुल ना लेना, क्योंकि मैं बादामों का तेल निकालता हूं, उनमें एक जरा नहीं होता। और देसी बादाम मेरे भाई निकालते हैं, देसी बादाम, उनमें कोई कड़वा हो सकता है, जो ताकत तासीर उसमें है वो तो बिल्कुल फारिग होते हैं, वो कभी ना लीजिएगा। ये भिगो के इस्तेमाल करने से कैंसर खत्म होता है। हामीम ला युनसरून बहुत ज्यादा पढ़ें। और किसी का सवाल है? नमाज में तवज्जो ध्यान के लिए कोई वजीफा बताएं। बताओ भाई, नमाज में तवज्जो और ध्यान के लिए कौन बताता है? एक बंदा कहता है जी नजर की हिफाजत से ये चीज मिलती है। और किसी का मुशाहिदा? असर की नमाज के बाद ला यजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हू, सांस रोक के जब सांस टूटे बस। और लाहूती वजू, जो मैंने लाहूती वजू का तरीका बताया था, बड़ा जबरदस्त है। अगर पता नहीं एक दूसरे से पूछें और आज से लाहौती वजू शुरू कर दें। वजू के बाद तीसरा कलमा पढ़ के सीने पे फूंक मारे और वजू के बाद सूरत कदर एक दफा पढ़ें आसमान की तरफ मुंह करके। और जी, हाथ और नजर की हिफाजत जो नमाज में करेगा, नमाज के बाहर भी उसको ये चीज मिलेगी। चांद की 14 तारीख तक जो रोजाना सूरह कदर पढ़े, एक बढ़ाता जाए, रोज बढ़ाता जाए 14 तक, उसको ये चीज, ये नेमत मिलेगी। नजर की बारे में हिफाजत भी है, रूहानी हिफाजत भी है, जिस्मानी हिफाजत भी है। नजर की दोनों का ख्याल कीजिएगा, दोनों का। और जी, सांस रोक कर 3 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और वुजू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। वुजू के बाद तीसरा कलमा और आयतुल कुर्सी पढ़ें। दूसरा कलमा आयतुल कुर्सी। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, सोते वक्त अगर पढ़े तो नमाज में ध्यान आएगा, वसवसे नहीं आएंगे। जी, और वुजू के बाद दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन वजअलनी वजअलनी मिनल लदीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अगर ये पढ़े तो ये नेमत मिल जाएगी। हाँ जी, तस्बीह खाने की हाजिरी से ये नेमत मिलती है। और जी, और बताएं। कश्फुल महजूब का हल्का मुसलसल दर्स सुने। अच्छा जी, और किसी का सवाल? कहते हैं बिस्मिल्लाह के तावीज और या बासितों की तावीज की इजाजत भी दें, तासीर भी दें, दोनों सब के लिए इंशाल्लाह। जी,
कहते हैं आमिल बार बार वार करते हो, मारने के दर पे हो, तो या अल्लाह मैं बिस्बे का काफ कितमीर का किस लिए फिर? जी जी। हाँ हाँ, हर जगह कर सकते हैं। कल का जो अमल जो है हर जगह कर सकते हैं। काफी तो अभी अभी मिल जाएगी। हाँ अभी मिल जाएगी, आप तसल्ली रहो। लाहौरी जाए ना, लाहौरी देखो ना, चले गए, देखो मछली पर, बड़ी बड़ी मछली हम खाएंगे। मछली जरा एक तरफ करके रखना। बच्ची 4 साल की है, चल फिर नहीं सकती, उसके लिए बताएं। माजूर बच्ची है, चल फिर नहीं सकती। अच्छा। माजून शिफायाबी अबकरी की कहते हैं 1 साल की मेरी बच्ची थी, वो चलती नहीं थी, वो उसको इस्तेमाल कराई ऐसे। और रीढ़ की हड्डी की मालिश बच्ची की किस तेल से? किसी भी तेल से रीढ़ की हड्डी की मालिश करें। करामाती तेल कहते हैं ज्यादा बेहतर है। और किसी का मुशाहिदा जो बच्चा चलता फिरता ना हो? मछली का तेल, कॉड लीवर ऑयल जो होता है, उसकी मालिश करें तो फायदा ज्यादा होगा। अच्छा भाई, ये जो रोजाना के टोटके हैं, पहले भी हमारे जिम्मेदार साथी इसको लिखते थे और तफसील से लिखते थे। एक साहब ने लिखा तो मुख्तसर लिखा, मैंने उसको वापस कर दिया। तफसील से लिखा, ये तफसील मैं बयान करता हूं या हाजरीन हमारे मुखलिसीन बयान करते हैं, इसी तफसील से लिखें और मुझे जरूर दें, जो हमारे मुखलिसीन पहले भी लिखते रहे। ये मजालिस रोजाना के टोटके रूहानी तिब्बी। अच्छा, और कहते हैं दूसरों को दम किया जाता है, वो तो ठीक हो जाते हैं, अपने ऊपर असर आ जाता है। मैं तो कहता हूं नहीं आता। किसी को ऐसे कोई वहम होगा तो और बात है, वैसे नहीं आता। क्या ख्याल है? वही दम खुद अपने ऊपर पहले कर ले। हाँ हाँ, वही दम खुद पहले अपने ऊपर कर ले, अपना दम नहीं निकलेगा। सही बात है। हाँ जी, और टेंशन की वजह से दिमाग हिल गया है, खुद से बातें करता है, जहनी माजूर मजबूर, और जहनी माजूरी है, जहनी जहनी कोफ्त है, जहनी कोफ्त। बताएं जी कौन? बेरी के पत्तों से एक सांप कहते हैं नहलाया जाए, जिस पे हर पत्ते पे 3 बार पहला कलमा पढ़ते हैं। और अल्लाह अकबर की 3 तस्बीहां इस मसले के लिए सुबह शाम। दूसरे भाई का तजर्बा। तीसरे मुखलिस का तजर्बा के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अजीम कसरत से पढ़े। और चौथा आफा सिब तुम और आजान मुसलसल पढ़े। मैं बताता हूं जी। और किसी का मुशाहिदा इस मामले में? माजूर। अल्लाहुम्मा बेहरुमत रीबाइल कसरत से पढ़े जी। हैं? सदका करने से यह मसला हल हो जाता है। सदका करने से ये मसला हल हो जाता है। लंबा सजदा करने से यह मसला हल होता है। सूरत रहमान की तिलावत सुबह शाम सुनी जाए और पढ़ी भी जाए। और सूरत इखलास का हदिया करें। किसको?
जो हिस्सा बीमार है उसको सूरत इखलास कहा दिया करें, उस हिस्से को, उस बीमारी को। जी, तलवों और पिंडलियों की सरसों या किसी तेल की मालिश करें मुसलसल। जी, होम्योपैथिक की दवाई है बेलाडोना 200 की ताकत में, सुबह शाम दें माजूर के लिए। पर्ची आई है कि लाहौरी खवातीन पहुंच गई हैं, टाफियों का इसरार कर रही हैं। हमने हालांकि मछली बड़ी एक तरफ रखी थी, हमने मछली बड़ी एक तरफ रखी थी। एक या एक बद्दू था, तो वो किसी इलाके का गवर्नर बन गया। अल्लाह। तो उसका एक इलाके का बंदा आया, उन्होंने कहा क्या हाल है, खैरियत? भाई खाना लाओ, इसके लिए खाना लाओ। घर बार ठीक, बेटा, ऊंट, मेरा एक बीवी, बच्चा, घर। उन्होंने कहा 16 आने, हर शय ठीक। मेरा कुत्ता था, उन्होंने कहा वो भी ठीक। अच्छा, खाना रख के ना थोड़ा सा उसने खाया, उन्होंने कहा खाना इसका हटा दो। उन्होंने कहा मेरे बेटे का क्या हाल है? उन्होंने तो मर गया। हुई हुई कैसे? उसने मकान पूछा था ना, कह रहा मकान उसके पर गिर गया। अच्छा, ऊंट? कह रहे तेरे बेटे की कब्र का पानी ढोते ढोते ऊंट मर गया, वो कब्र की लिपाई करते करते। कुत्ता? कहा ऊंट की हड्डी उसके हलक में चुभ गई थी, लिहाजा कुत्ता ही मर गया। उन्होंने कहा बीवी? क्या तेरे बेटे को रोते रोते मर गई थी। सारा कुछ एक पल में उसने खत्म कर दिया। पहले कहता था हर चीज ठीक है, जब रोटी हटाई। अच्छा चलो, हाँ जी, क्या सवाल था अभी? बच्चे माजूर का जवाब तो हो गया। दिमागी मरीज का ये जवाब हो गया। एक बाबा जी खड़े होके कहते हैं कि कब्ज का इलाज, दो बंदों की कब्ज, एक अफयूनी की कब्ज और एक बुढ़ापे की कब्ज। मुझे एक तजर्बाकार ने बताया, मैं एक जगह खड़ा था, लेटरिनों की लाइन थी, बड़ा तजर्बाकार था। ऐसे देख के कहने लगा कब्ज वाले और कतरे वाले के लैट्रिन के सामने खड़ा ना होना। बड़ा तजर्बा बताया, कब्ज वाले और कतरे वालों की लैट्रिन के सामने खड़ा ना होना, वो निकलेंगे ही नहीं अंदर से। अच्छा, इसका मुझे तजर्बा मिना मुजल्फा अरफात में बड़ा हुआ। मिना मुजल्फा अरफात में फिर मैं क्या करता हूं, अपना मुशाहदा, जहां देखता हूं ना लाइन में बूढ़े ज्यादा हैं, मैं जवानों वाली लाइन में चला जाता हूं। यह भी आपको तजर्बा बताऊं, हज के 2-3 हज मैंने किए हैं, हज का बड़ा तजर्बा होता है। जहां मैंने देखता हूं बूढ़े हैं, मैं उस लाइन में खड़ा नहीं होता। जहां जवान है उस लाइन में खड़ा होता। जवान यूं गया, यूं फारे को बात, चल भाई आ गया। ये आपको भी तजर्बा बता रहा हूं। कब्ज का इलाज जो है ना, असल में चाय छोड़ना है। हम चाय नहीं छोड़ते। मेरे साथ बाबा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ना गया, मैं एक सफर में गया बहावल नगर। बाबा जी कटोरा भर के चाय पीता था। मैं जहां गया, हजरत चाय, मैं कि मैंने तो नहीं पी, बाबा जी को चाय पिलाएं और बेहतरीन पिलाएं। बाबा जी 2-4 कप खुश। जहां जाऊं चाय बाबा जी को पिलवा रहा हूं। बाबा जी चाय पिए, थोड़ी देर कहने लगे मुर्शिद मतलब कि हुण पेशाब ज्यादा आंदे हुण ना हुण। बाबा जी को जो फिर पेशाब शुरू हुआ, जहां मैं जाऊं हजरत आए, हजरत आए, क्या करें? मैं कहा जी मैंने तो चाय नहीं पीनी। बाबा जी को फौरन चाय पिलाएं, 2-3 प्यालियां, और वो चाय भी लाजवाब। दूसरा जो है खुश्क ग़िज़ाएं, इसमें एक चीज मैं बताता हूं, बड़ी लाजवाब चीज है, बवासीर के लिए भी, दायमी कब्ज के लिए भी। साबित इसबगोल और साबित तारा मीरा, कड़वा जिसमें से तेल निकलता है? उसके बीच बस, ये कब्ज का बवासीर का इलाज है। साबित इसबगोल, छिलका नहीं, और साबित उसके तारा मीरा के बीज, तारा मीरा कहते हैं ना, तारा मीरा,
बस साफ कर ले कंकर पत्थर, 1 चम्मच बड़ा 2 चम्मच बड़े, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम, ये कब्ज को खत्म कर देते हैं मुस्तकिल खुद, अगर कुछ अर्सा इस्तेमाल किया जाए तो। जी और सवाल? कहते हैं कोई पुरसकून नींद का बटन दें, चाबी दें। जी आप बोले। बैठ। खानदान में लगता है कि पीछे माजूरी चली आ रही है ना, होगा, या खानदान में बवासीर है, दो में से एक चीज। और अगर माजूरी है तो माजूरी का इलाज अभी सब ने बताया है, बताया है, जिसको माजूरी हो उसका इलाज बताया है। ये रिकॉर्डिंग पड़ी होगी नेट पे, क्यों जी पड़ी होती है, लाइव जा रही है, सेफ हो जाती है। तो माजूरी का इलाज है और वो हम सब ने ahbab ने बताया है। अमल हामीम लायुन सरो अफासिब्तुम और अजान। जी अच्छा जी, ये हजरात ये साहब कहते हैं नींद पर सुकून नहीं आती, उसके लिए कोई अपना खास तजर्बा बताएं। हैं? तस्बीहात फातिमा सोते वक्त एक तजर्बा, दूसरा या बाइसो या नूरो दिल पे हाथ रख के दूसरा तजर्बा, या फत्ता हो, या फत्ता हो। अच्छा, पढ़ते पढ़ते सो जाए। अच्छा ठीक है। चिल्ले वाला दरूद दिल पे तस्बीह रख के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिआदत कुल्li दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम, दिल पे तस्बीह रख के पढ़ें। जी 11 मरतबा पहला कलमा पढ़ें, नींद बेहतरीन होगी। और फजरबना अला आजान फिल कहफ पढ़ें, सूरत कहफ की आयतें मुसलसल पढ़ें, नींद आएगी। दरूद इब्राहिमी पढ़ें, नींद आएगी। अल्लाहुम्मा बिहुर्मत रीबाइल पढ़ें, मोमिनों को दिलों को सुकून देता है। सारा दिन कहते हैं सारा दिन यहां खिदमत में गुजारें, सोहनी नींद आएगी। सच है, सच है। और खिदमत करने वाले के जो बख्त बुलंद होते हैं ना, और जो काम बनते हैं, ये गुमान से बालातर है। मैं आज मजमे में पहले दिन से कुछ जवान ऐसे देख रहा हूं, वो हर साल खिदमत करते हैं, इस दफा वो सुकून में हैं। मेरे मजमे में मेरी नजरों में है बहुत से जवान कि हर साल खिदमत करते हैं, इस दफा पुरसुकून है। और मैं भी कहता हूं सुकून करने दो, क्यों, अब उनको इतना मिल चुका है कि खिदमत की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं ना तंगी दामा पे ना जा, मांग कुछ और, मांग ले कुछ और ले, खिदमत से मिलता है। और बदकिस्मत है जिसकी खिदमत छिन जाए, बदकिस्मत है जिसकी खिदमत छिन जाए। वो कैसे, आपको कैसे तजर्बा है? कहते हैं मैं, कितनी उम्र है आपकी? 26-27 साल उम्र है। वाले साहब नहीं है, वालदा हैं। उनकी मैं उनकी मैं खिदमत करता हूँ, पाँव को तेल लगाता हूँ, टांगे दबाता हूँ, पाँव दबाता हूँ। बस फिर जब वो दबाता हूँ उनके दिल से दुआएं निकलती, कर 1 मिनट नहीं लिखता, मैं पुरसकून नींद सो जाता हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक ली फी नौमी, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी नौमी, पढ़ते पढ़ते, ये कहां से लिया आपने? ये मौलाना तकी उस्मानी साहब की मसनून दुआओं में है। अपने कहते मैंने खुद आजमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी नौमी। और नींद का बटन, बावजू सोने से नींद आती है, तलवों में तेल लगाएं, बहुत पुरसकून नींद आती है। रिसाले में पढ़ा था,
رسالے میں پڑھا تھا کہ جو بے خوابی کے ہاتھوں مجبور ہیں وہ آیت پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مسلسل پڑھیں۔ جس کو نیند نہ آ رہی ہو، اللہ کا ذکر یا کوئی سورت پڑھیں، نیند آ جاتی ہے۔ یا قیوم 100 دفعہ پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے۔ کہتے جو چائے کا مگا پی کے بیٹھا ہے، چائے کا مگا پی کے بیٹھا ہے، پھر پہلے تو وہ بھی چھوڑے۔ ہاں جی، عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے سے نیند آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مسلسل نیند کم کرنی ہو یا نیند نہ آتی ہو، دونوں کے لیے مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت دل کے خالی باکس میں اللہ رکھ کے سونے سے نیند بہت لاجواب آتی ہے۔ سورۃ اخلاص کا عمل 3 دفعہ دائیں طرف، 3 دفعہ بائیں طرف، پھر سیدھا آسمان کی طرف۔ سورۃ اخلاص کا عمل لاجواب ہے نیند کے لیے۔ آگے بولیں۔ مخدوم صاحب والا عمل کر کے سوئیں، نیند لاجواب آتی ہے۔ رات کا کھانا جلدی کھائیں، عشاء پڑھیں، نیند آ جائے گی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور پڑھتے پڑھتے سو جائیں، نیند آئے گی۔ 21 بار بسم اللہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، نیند آ جائے گی۔ سورۃ یاسین کی آیت سلام قول من رب الرحیم پڑھ کے پڑھے تو نیند آ جائے گی۔ سورۃ ملک کی 30 آتے ہیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھے سورۃ ملک، نیند آ جاتی ہے۔ حسد کرنا چھوڑ دے، نیند آ جائے گی۔ ایک دوسرا اضافہ میں کرتا ہوں، قسطوں پہ چیزیں لینا چھوڑ دے۔ یہ میرا تجربہ ہے، زندگی میں یاد رکھیے گا۔ قسطوں پہ چیزیں لینا چھوڑ دے۔ جو شخص قسطوں پہ یا بینک کا سود، اس کی نیند کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ قسطوں پہ چیزیں لینا اور بینک کا سود، اور درس سنے نیند آ جائے گی۔ تلبینہ، تلبینہ کا استعمال کہتے ہیں سب بیماریوں کا علاج بھی ہے، طاقت بھی ہے، اصل چیز ہے۔ چلو جی، آج کی نشست ختم کریں۔ مجھے اصل میں فکر ہے آپ کا، سچی بات ہے، آپ کا فکر ہے، بہت فکر ہے آپ۔ ٹافی کی ترتیب ہے جی، لے آئے، میں نے دم تو کی ہے، کسی کو بھیجنے لے آئے، یہیں پڑھی ہے، ہاں لے آئے۔ سورۃ یوسف کی آیت بھائی بتائی تھی فروخت کے لیے، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80۔ فلن، ہاں بھائی، کتنے بندوں کے ذمہ لگایا تھا سورۃ یوسف کی آیت؟ ہاں، روزانہ کتنی بار؟ 40 بار۔ اور جو مستقل عمل خدمت والا دیا تھا، روحانی 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 جانثار۔ اچھی بات جی۔
दुआ कर दी, टाफी का अमल, दुआ पी लें, बस बरकत है। अच्छा भाई, टाफी जो है ये बैठे बैठे एक एक ले लें, दो ना लेना। एक बात बताओ, दो आ जाए वापस कर देना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। और इसको इस्तेमाल ना करना, इसको महफूज रखना। कोई चीजें ऐसी होती हैं उनका ताल्लुक एतमाद से होता है, बज़ाहिर छोटी चीज होती है लेकिन एतमाद से होता है, यकीन से होता है और इश्क से होता है। 40 दिन के बाद इस टाफी को मैंने कहा है खा लें या पानी में भिगो दें, घुल जाए, मीठा पानी सबको पिला दें। और बेहतरीन इंसान वो है जो रूहानी जानिसार की खिदमत सारी उम्र अपने जिम्मे ले ले, फिर सारी उम्र, एक लफ्ज कहता हूं, मरने से पहले जन्नत का अपना घर भी देखे और मरने से पहले जन्नत की लज्जतें भी पाए इंशाअल्लाह। बस दो लफ्ज है मेरे पास, फिर सुन ले। रूहानी जानिसार का अमल जो करे, 40 दिन का अमल दिया है, मेरा मेरी नस्लों का इस सारे निजाम का सख्त तसव्वुर, हिफाजत, किफायत, किफालत, बरकत, आफियत। 40 दिन के बाद टाफी, और खुद टाफियां बांट दें, रात मैंने बता दिया था। और इसको अगर मुस्तकिल जिंदगी का मामूल बना ले तो फिर दो मैंने सिर्फ अल्लाह से वादे अर्ज किए हैं, खुद वादा नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं। दो तीफे, एक क्या, मरने से पहले जन्नत का माल अल्लाह दिखाएगा, और दूसरा, और मरने से पहले अल्लाह पाक जन्नत की लज्जतें उसको अता फरमाए। टाफी उठाएं, अभी बांटे, उठाओ 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 भाई। 3 पैकेट है, दो हैं, इधर आओ, इसको दो, उठाओ भाई, खुद बांटो, तुम बांटो, बांटो, जल्दी करो, जल्दी करो, बांटो। एक लेके चलते जाओ, हर बंदा ऐसे एक एक उठाता जाए, जल्दी करो ना भाई, 2 मिनट लगाओ, देर हो गई है। छोटा सा होता था, कहता था बाबा जी बताऊंगा, हम क्या देता था मुझे, कह रहे बाबा जी बताऊंगा, वो कहते बाबा की बला होगी, बाबा जी बताऊंगा। हाँ जी, बस एक काफी लेती, 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर उठा लें, जल्दी करें ना भाई। भाई देर हो गई, अल्लाह वालों, देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई भाई। भाई बात सुनो, इनको मुठियां भर के दे दो, खुद बांट देंगे, ये सौदे अमानत वाले हैं, बांट लो आपस में ऐसे, एक 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 ऐसे। बात सुनो, बात सुनो भाई, ओ अल्लाह वाले, फेंको ऐसे, ये बरकत है, एक एक ले लेना, बाकी वापस कर देना। अल्लाह के हबीब सुनो, बाज लोग इल्म की कमी की वजह से इसको बेकदरी कहेंगे, सुनो भाई, छुआरे बांटना फेंकना सुन्नत है। अगर इल्म की कमी है फिर कहते हैं जी रिस्क फेंक रहे हैं, बाज औकात हुक्म होता है। क्या होता है, क्या होता है भाई, शोर नहीं, शोर नहीं, खामोशी, खामोशी। अब देखें फिर आवाज आ रही है, अल्लाह अकबर, मुर्शिद की माननी भी ना आई। अल्लाह वालो, पूछो, उसको नहीं मिली उसको दे दो, अगर जायद मिली है वापस कर दो। हाँ जी, चलो हो गई पूरी, वापस ले आओ बाकी, दे दो भाई, दे दो, दे दो भाई, बस एक एक, जो अगर जायद है फौरन वापस कर दे। आ जाओ, बैठ जाओ भाई, इधर दे दे, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, मैंने कहा है फेंक दो, वो खुद ले लेंगे थोड़ी सी। आ जाएंगे, अब करीब आ जाए। देखें, ये है ईमान और अमानतदारी, माशाल्लाह वापस कर रहे हैं, जिनके पास 2 चली गई, 3 चली गई, वापस कर रहे हैं। यह है असल बरकत, जर्रे में होती है, बरकत अमर में होती है, बरकत इस चीज में है कि अब ये चीज अता की जा रही, उसी में बरकत है ना। ऐसे ना फेंके, इकट्ठा करें और फिर वापस कर दें। अच्छा जी, बाकी बचती खवातीन की तरफ दें, वहां चली गई, ठीक, हो गई जी।
کوئی رہ تو نہیں گیا اللہ والوں؟ یہ دے دیں اور رکھیں، لے دیں، کوئی رہ گیا ہو؟ سب ہو گئے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ برکت دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا